guys, can you see this? जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. If we are seeing this in a perfect way, each sentence have 4 sentences like this: simple or indefinite, progressive or continuous, perfect and perfect continuous. So there are total 12 sentences in this tense. Okay, so we start it with a single sentence in a very simple way, that is singular. How can we do this in a singular way? There are affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. So started we first, that is affirmative. How can we see a sentence is affirmative? When this is a simple way. She writes a letter. अगर लिखा है she writes a letter, इट मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है जो कि राइट्स है, अ लेटर इज़ ऑब्जेक्ट. तो हमारा ये कौन सा सेंटेंस हो गया? दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड इंडेफिनिट इज़ अफर्मेटिव, ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, तो इफ़ वी सी इन नेगेटिव, सो हाउ कैन वी डू दिस? सो वी ट्राइड इन दिस. सी, how can we do this? C, DOS does not write a letter. Okay, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज लगाते हैं, अगर प्लूरल होता है तो हम यहाँ पर लगाते हैं डू नॉट. ओके, so here is only for singular subject, so we can write this: she does not write a letter. Okay, how can we do this in interrogative sentence? So let's very easily write DOES this. Okay, in first does, then subject she, then negative interrogative this does she, then verb WRITE, write a letter, then question mark. So then you can do that yourself and please comment me how can we do this, the interrogative negative. So that is, does she not write a letter? Okay, so you can do this very easily way. All the sentence in this copy written in it's very simple way. You can say this, that you eat the food, okay, you sing a song. You can do this only very simple language, very simple language, and that is for this are for plural. So you can see this affirmative sentences: they play cricket. This is plural. Okay, so the verb is also plural, play cricket. Okay, so this is cricket, this is object. How can we do this in negative? Subject is they, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वे क्रिकेट खेलते हैं, तो हम बोल सकते हैं हिंदी में वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? दे डू नॉट प्ले क्रिकेट. ओके, then how can we do this negative? So we do this negative in a very simple way. We starting from do, then they play cricket, then question mark is very important for us in the interrogative sentence, and then interrogative and also from interrogative negative. So let's we start it. You do this now. If you are seeing this, then now you can do this. How? I will tell you. First starting from do, they, then only for negative not, then play, then cricket. Okay, then question mark is also important for this. So I will tell you, this is singular and this is plural. Okay, this is plural. So now I will tell you
some special point of view, that is uses. That is, first is to show habitual action like this. I take my breakfast every day. जैसे मैं कहती हूँ मैं रोज़ नहाती हूँ, मैं रोज़ खाना खाती हूँ, मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, लाइक दिस. सो ऑलवेज़ यूज़ इन प्रेजेंट टेंस. हम उसे कंटिन्यूअस में या पास्ट में या हम उसे फ्यूचर में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं कह सकते. वो क्योंकि वो हमारी हैबिट है, और हैबिट हमेशा जो होती है वो हमारी होती है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में. और अगर आप यूज़ करते हो उसे कंटिन्यूअस में तो प्लीज़ अभी से रोक दो गाइस, वो गलत होता है क्वेश्चन. तो हमें बोलना है आई टेक माई ब्रेकफास्ट एवरी डे, आई गो टू टेम्पल एवरी डे. हम ये नहीं कह सकते आई एम गोइंग टू टेम्पल. यस कह सकते हो वेन एवर यू आर एक्चुअली गोइंग ऑन द वे, उस टाइम पे बोल सकते हो. बट ये नहीं कह सकते हो आप बैठे हो यहाँ पर और बोल रहे हो कि नहीं मैं मंदिर जाता हूँ के सेंस तभी आता है जब आप लगाते हो इंडेफिनिट टेंस. तो दूसरा हम देखते हैं टू सो यूनिवर्सल ट्रूथ. जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बात कही जाती है, जैसे कि द सन राइजेज़ इन द ईस्ट. सन जो होता है वो ईस्ट से राइज़ करता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम में सेट्स होता है, पश्चिम में डूबता है. द सन सेट्स इन द वेस्ट. करेक्ट, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसे कोई भी झुटला नहीं सकता है, इसलिए तो ये इंडेफिनिट में ही यूज़ होगा, बाकी कोई सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा. टू सो इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जो इम्परेटिव वे में कहा गया हो, जैसे कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो तुम, ऐसा हो सकता है ना. अब है प्रोफेशनल एक्टिविटी, लाइक जैसे बार्बर हुए, देखा होगा बार्बर को, नाई जो बाल काटते हैं. अब बार्बर कट्स हेयर, वो हमेशा क्या करते हैं बाल काटते हैं, तो हम इनके लिए और कुछ नहीं लगा सकते, हमें इंडेफिनिट टेंस ही लगाना है. ओके. अब जैसे कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन हुई इंडिया लॉन्चेस चंद्रयान 3, इसमें भी हमें इंडेफिनिट ही सेंटेंस लगाना है. ओके गाइस. देन टू डिस्क्राइब द इवेंट दैट अकर्ड इन पास्ट इन अ ड्रामेटिक वे, जैसे अलेक्जेंडर डिफीट पॉरश. ये सही बात है, जो हमारे इवेंट थे जो कि पहले हो चुके थे उन्हें हम दिखाना चाहते हैं अभी, तो हम उसमें यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि अलेक्जेंडर ने पारस को हराया था. ठीक है. इसी तरीके से इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच स्टार्ट विथ हेयर एंड देयर, अगर हेयर और देयर से स्टार्ट हुआ हो तो हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इंडेफिनिट, जैसे हेयर कम्स द बस. ओके, दिस इज़ करेक्ट सेंटेंस. सो यू विल प्लीज़ यूज इट इन योर डेली लैंग्वेज एज वेल एज योर ग्रामेटिकल. ओके गाइस, so you please wait for next video. You will wait a while.